Good morning, dear children. Today we will have our next lesson, chapter number 14, our resources. Dear children, do you know what is the meaning of resources? Resources means the materials that satisfy the human needs are called resources. The resources are the materials which have got value and they used to satisfy our needs. Basically, there are the characteristics of resources are: firstly, it depends on the utility; second, it depends on the value; and depletion or consumption. Dear children, we are having basically two kinds of resources. First one is natural resources and second one is artificial or man-made resources. So you can see here, natural resources are exhaustible resources and inexhaustible resources. So inexhaustible resources are the resources that can be renewed or they do not get exhausted are called inexhaustible resources. Means ये कभी भी perish नहीं होते, ख़त्म नहीं होते. The examples are soil, water, air and sunlight. They never get deplete. ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. और the exhaustible resources are basically fossil fuels and forest. ये this used to exhaust at one time. और these are all in the category of natural resources, and second type of resource is human resource. So here you can see the renewable resources are resources which can be renewed quickly. Inexhaustible are the renewable resources. They can be renewed quickly by the nature. Now, non-renewable resources are those which can replenish in human life. So it takes thousands of years to form, and this can replenish, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे at a time. For example, coal and petrol are natural resources. Here in the flow chart you can see the natural resources, human made resources and human resources. So the natural resources are those which we get from the nature and they are used to satisfy our needs without much modification. Many of the natural resources can be without any modification. They cannot be modified, but they can be used, and these are being provided by nature. Here, air. Air allows human and animals to breathe. It carries seed from one place to another, that is responsible for the reproduction of new seeds. Sunlight helps the plants. These are the natural resources. ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है. साथ ही साथ ये हमारी ग्रोथ के लिए भी responsible. We cannot survive without sunlight. It gives us light and heat. Water are important for human beings and animals. They are used to get to survive. They help human and animals to stay healthy and also help plants to grow. So here these are all renewable resources that can be grown or made again. They never run out if we take care of them. It helps to keep our earth clean, so we need to protect these resources. Now, renewable resources. Soil is one of the most important renewable resources, means inexhaustible resources. It contains loose particles of rock, minerals and decomposed animal and plant. It forms the topmost layer. ये सबसे ऊपर का लेयर जो अर्थ का सरफेस का है वो बनाता है, और यहाँ पे most of the life is there. Most of the life exists here only. Plant grows in soil and produce food. Soil is loosened or carried away by various natural resources. Natural agent we have already read in the plant
reproduction of plant chapter. The natural agents are wind, water, human activity, and grazing of animals, etc. But excess use of this water is carried and it causes soil erosion. So soil should not be eroded, it should be conserved. How we can conserve the soil? By planting more trees, by checking overgrazing of animals, and also by making embankment, मतलब डैम्स बना के हम सॉइल को वॉश होने से बचा सकते हैं हैवी रेन्स के दौरान. नेक्स्ट इज वाटर. As you all know, water is required by all living things to survive. It is being used for drinking, domestic purpose, etc. It is also responsible for cultivation of crop and irrigation. Flowing water, डैम्स में जो पानी हम स्टोर करके रखते हैं उस वाटर से वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये हमारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ में और हमारे हाउस होल्ड में भी ये इलेक्ट्रिसिटी काम आती है. हमको वाटर को कंजर्व करके, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना है. पानी को कैसे हम बचा सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर. वेस्टेज, पानी का वेस्टेज रोक के एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन कैन बी स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, डैम्स बना के स्टोर कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए पानी आगे के लिए. नेक्स्ट इज़ विंड. यस, एयर और विंड दोनों में एक डिफरेंस है. एयर की ज़रूरत होती है हमको सरवाइव करने के लिए, लेकिन जो मूविंग एयर है उसको विंड बोलते हैं. इसमें मूविंग एयर इज़ गॉट एनर्जी. इसमें एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक विंड मिल्स इंस्टॉल करके हम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. साथ ही साथ विंड का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हमारे जो हार्वेस्टेड क्रॉप हैं उसको थ्रेशिंग और विनोइंग करने के लिए. ग्रेन्स से जो अनवांटेड जो ऊपर का जो कचरा है वो हटाता है और वो ग्रेन्स को सेपरेट करने का काम भी करता है विंड. सिमिलर इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कैन बी रिन्यूड. ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. और ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? सन से जनरेट होता है. इट गिव्स जो सारी लाइफ है धरती पे वो सब कुछ सोलर एनर्जी के कारण है. इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट एज प्लांट यूज टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और साथ ही साथ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वाटर साइकिल में, सीजन्स चेंज करने में एट्सेट्रा, है ना. कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है सोलर के लिए, सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए. सोलर बैटरी, सेल्स, वाटर हीटर, सोलर कुकर, ये सारे आपके सोलर एनर्जी से वर्क करते हैं. इवन आपके जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सोलर एनर्जी से वर्क करती है. नाउ नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनका मतलब होता है ये बहुत जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे एट ए टाइम. और इनके साथ साथ ये रीजनरेट नहीं हो सकती. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड टू रीजनरेट. फिर से बनने के लिए इसको बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है. इट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. इसलिए इसको बहुत टाइम लगता है. वंस वी यूज़ दैम दे आर गॉन फॉर एवर. हम उसको अगर एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लिव और सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो आप इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड फॉरेस्ट आर द एग्जांपल्स. मिनरल्स, नेचुरल गैसेस, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. Now you just see here
फॉसिल फ्यूल का यूज़ आपको पता ही है कि पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। कोल और पेट्रोलियम कहाँ से फॉर्म होते हैं? जो डीके हो जाते हैं प्लांट और एनिमल, उनके थ्रू ये कोल और पेट्रोलियम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है इसमें फॉर्मेशन होता है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम जो व्हीकल चलाते हैं उसका फ्यूल भी हमको इन्हीं के थ्रू मिलता है। सो द फ्यूल शुड बी यूज्ड इकोनॉमिकली, बहुत इकोनॉमिकल वे में यूज़ करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाउ वी गेट फॉसिल फ्यूल्स, यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट। आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसके पहले डेड प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो बरीड हो गए सॉइल में। सी जो ओशन में है, पानी के अंदर, बड़े बड़े समुद्र और सी के अंदर जो डेड प्लांट और एनिमल हैं वो जो डेड हो गए हैं वो बरीड हो गए हैं, दब गए हैं। उसके बाद जो प्रेशर, पानी के अंदर भी प्रेशर आता है रॉक और वाटर और एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, फिर ये फॉसिल फ्यूल जनरेट होते हैं। इस फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल वेल के थ्रू, और अर्थ में अगर ये डेड प्लांट एनिमल है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कोल बनेगा। लेकिन अगर पानी के अंदर है तो ये पेट्रोलियम निकलेगा। नाउ उसके बाद क्या होता है, इसको रिफाइनरीज में प्योरीफिकेशन के लिए सेंड किया जाता है, और आफ्टरवर्ड्स दिस इज़ बीन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे अलग अलग इसका यूसेज है। कोल इसमें से जो जनरेट होगा, फॉसिल फ्यूल के 3 टाइप हैं, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये 3 टाइप से इसमें से जनरेशन होता है। नाउ फॉरेस्ट, यस फॉरेस्ट किसी ने लगाया है क्या फॉरेस्ट? नो, इट इज़ एक्चुअली अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर बीन डन। बहुत सारे पेड़ जो एक ही तरह के पेड़ हैं एक बहुत बड़े एरिया में, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। फॉरेस्ट आर यूज़फुल, बहुत सारे तरीके से हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं ये, बिकॉज दिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, it provides shelter to food and animals, insects and birds. They provide medicine, they provide timber, they provide pulp for our paper, and also they are responsible for maintaining the ecological balance of nature. Now, how do you conserve the forest? Forest भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये रिन्यू नहीं हो सकते। सो हाउ वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट? वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड, वी शुड प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर का वेस्टेज बचाना होगा हमको। आफ्टरवर्ड्स हाउ कंजर्वेशन, आपको नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से कंजर्व कैसे करना है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ यूज़ दैम जुडिशियली, मतलब बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल करना है। एक्सेस उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, वेस्टेज से बचाना है, उनको मेंटेन करके रखना है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको ऑप्शन के तौर पे यूज़ करना है। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? ह्यूमन बींग्स मतलब हम आप ये सारे ह्यूमन हैं, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन ही तो यूज़ करेंगे ना। और ह्यूमन उनको कैसा यूज़ करेंगे? दे यूज़ टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स पीपल। लोगों को अच्छी तरह से इस्तेमाल, लोग जो उनका पोटेंशियल है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना ह्यूमन रिसोर्स है। लोगों से काम लेना इज़ ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली। ह्यूमन बींग्स यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज बाय, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दिमाग से, अपने स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू दे यूज्ड प्रॉपरली। ह्यूमन रिसोर्सेज टू नीड प्रोटेक्शन एंड केयर, उनका केयर, उनका प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। दे शुड बी मस्ट बी हेल्दी, स्किलफुल, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए समय समय पे ट्रेनिंग और उनकी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है।
सो इससे हमको ये पता चलता है कि ऑल द रिसोर्सेज आर वाइटल, सारे इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए. दे शुड नॉट बी वेस्टेड और केयरलेसली यूज्ड. सो वी मस्ट हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली and creatively and peacefully manner. So here ends your chapter. Have a great day.